السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائن۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈینسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈینسی فیز 2، where life comes alive۔ شہر کو آلودگی سے پاک بنانے کے لیے ضروری اصلاحات لائیں، آئندہ 25 سال کو نظر میں رکھ کر منصوبہ بندی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ ناگرجنا ساگر لبریز، 18 سال بعد 14 دروازے کھول دیے گئے، سری سیلم سے بھی پانی کا اخراج۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں مقامی شخص کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا، حلقے کی ترقی کے لیے کانگریس کی کامیابی ضروری، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کی میڈیا سے بات چیت۔ رنگا ریڈی کے کوتور منڈل میں دل دہلا دینے والا واقعہ، بھائی نے غیرت کے نام پر بہن کا قتل کر دیا۔
और मणिकुंडा में दिलखराश सड़क हादसा, बेटी को स्कूल छोड़कर लौट रही खातून को वाटर टैंकर ने रौंद डाला। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद शहर को आलूदगी से पाक बनाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात लेकर आएं। कमांड कंट्रोल रूम में बलदिया नज़्म नस्क और शहरी तरक्की पर ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास लिया। इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा 25 सालों की ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए मनसूबाबंदी करें। वज़ीर आला ने कहा कि ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज निज़ाम, ज़ेर ज़मीन बरक़ी केबलिंग करने के लिए इक़दामात करें। वज़ीर आला ने कहा कि कॉर्बन रीजन में आलूदगी पर काबू पाने मुस्तकिल हल तलाश करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों के मसाइल का जायज़ा लें। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में इस तरह मसाइल पैदा न हों, इसकी एकसुई के रास्ते तलाश करें। वज़ीर आला ने कहा कि बुनियादी सहूलियात के साथ तरक्की के इक़दामात होने चाहिए। नागार्जुना सागर डैम में बालाई इलाकों से आने वाले जबरदस्त सैलाबी पानी के सबब ज़ख़ीरे आब लबरेज हो गया है। सूरत हाल को देखते हुए हुक्काम ने प्रोजेक्ट के 14 दरवाजे खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया है। मंगल को दरवाजों के खोले जाने के मौके पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कुमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, ए लक्ष्मण के अलावा कई आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। बताया जाता है कि नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 586 फीट तक जा पहुंची है। दरवाजे खोले जाने के पेश नज़र नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस रहने की हिदायत जारी कर दी गई थी। वाज़ेह रहे कि 18 साल के वक्फे के बाद ये पहला मौका है कि 1 महीना कबल ही नागार्जुना सागर से पानी का अखराज अमल में लाया गया है। జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి పేరుతో ఏర్పడిన కుడి కాలువ ఆయకట్టు 10 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు భారతదేశ ద్వితీయ ప్రధానమంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి పేరుతో ఉన్న కాలువ ఎడమ కాలువ 10.4 లక్షల ఎకరాలకి నీళ్లు అందిస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఇది. తెలంగాణ భూభాగంలో 6.5 లక్షల ఎకరాలకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ భూభాగంలో 4 లక్షల ఎకరాలకి ఆయకట్టు అందిస్తున్న మరి ఎడమ కాలువ. జిల్లాల వారీగా చూసినప్పుడు నల్గొండ జిల్లాలో 1.5 ఎకరాలు, సూర్యాపేట జిల్లాలో 2.3 లక్షల ఎకరాలు, ఖమ్మం జిల్లాలో 2.5 లక్షల ఎకరాలకు కలుపుకొని తెలంగాణ భూభాగంలో 6.5 లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందిస్తున్న అతిపెద్ద ప్రాజెక్టుగా నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు రూపొందించబడింది. తొలి ప్రధాని నవభారత నిర్మాణ మరి గొప్ప నాయకుడు, గొప్ప ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు 1955 డిసెంబర్ 10న ఈ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపన చేస్తే 1967లో స్పిల్వే పనులు పూర్తి కాగా అదే సంవత్సరంలో దివంగత ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ గారు చేతుల మీదుగా ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించడం జరిగింది. दरियाए कृष्णा पर वाक़ई 2 रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो जारी है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुक्काम ने गुज़िश्ता रोज खोले गए 3 दरवाजों के बाद अब मजीद 2 दरवाजे खोल दिए हैं। श्रीशैलम से पानी के अखराज के लिए अब जुमला 5 दरवाजों को 10 फीट तक खोल दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में जारी मौसलाधार बारिश के नतीजे में दरियाए कृष्णा और इसके मुआविन नदियों में जबरदस्त पानी का बहाव देखा जा रहा है। रियासती वजीर बराए सिटी इंचार्ज पूनम प्रभाकर का कहना है कि हल्के असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ मुकामी शख्स को ही टिकट दिया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने पार्टी कायदीन के साथ हल्के के दौरे के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि हल्के की तरक्की के लिए कांग्रेस का जीतना जरूरी है।
उनका यह भी कहना था कि सिर्फ बेहतर उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। पूनम प्रभाकर ने बताया कि हुकूमत हैदराबाद की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। शहर में फ्लाईओवर, अंडरपास, एसटीपी और पार्क्स की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता 10 बरसों से नजरअंदाज किए गए अवामी मसाइल को हल किया जा रहा है। దాదాపు 1,50,000 కొత్త యూనిట్స్ అంటే రేషన్ కార్డుల యొక్క ఉన్న దాంట్లో నా పేరు మీద రేషన్ కార్డు ఉంటే 10 సంవత్సరాలుగా నా కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య పెరిగితే కూడా ఆ సంఖ్యను అందులో నమోదు చేసుకునేటువంటి అవకాశం లేకుండే ఈరోజు ఆ విధంగా 1,50,000 కార్డుల్లో దాదాపు 2,50,000 మంది పేర్లను నమోదు చేసుకున్నటువంటి కార్డులను కూడా ఇస్తూ ఉన్నాం। రాజకీయాలకు అతీతంగా అర్హతను బట్టి ఇప్పుడు కూడా ఇంకెవరైనా రేషన్ కార్డు రాలేదు, నాకు రేషన్ కార్డు కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు కూడా అప్లికేషన్ చేసుకోండి। 1,00,000 మందికి ఇవాళ కూడా వెరిఫికేషన్ అవుతూ ఉంది। ప్రభుత్వం సానుకూలంగా 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పడ్డ ఇబ్బందులను తొలగించాలని ఈ రేషన్ కార్డుల ప్రక్రియ చేస్తూ ఉంది। ఒకవైపు పేదలకు అవసరమైన ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్, రేషన్ కార్డులు, మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, ఇతరత్ర సమస్యల వల్ల కొంత జూబ్లీహిల్స్కు జరిగిన ఇబ్బందిని అన్నింటినీ పరిష్కరించే విధంగా మా చర్యలు ఉంటాయి। అది మొన్ననే మా గౌరవ వివేక్ గారు ఆల్రెడీ కార్యాచరణ తీసుకున్నారు, దానికి సంబంధించి కూడా కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది। ఇంకా మీ దృష్టికి వస్తే కూడా ఏమైనా ఉంటే కూడా దయచేసి ప్రభుత్వం దృష్టికి తేండి। ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో ఒక నిమిషం కూడా ఎన్నుకోపోయేది లేదు। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकने असेंबली जी कमलाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मतलब धोखा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीसी डिक्लेरेशन के जरिए बीसी के वोट कांग्रेस ने हासिल किए। बी कमलाकर ने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात ऑर्डिनेंस और जीओ से कुछ हासिल नहीं होगा, ये पहले नहीं किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीसी तबके के मामले में एक दिन भी मोदी से मुलाकात नहीं की। रेवंत रेड्डी खानगी कामों के लिए मोदी से मुलाकात करते हैं। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। पार्टी सतह पर बीसी तबके को टिकट देने का कांग्रेस का ऐलान भी धोखा है। उन्होंने कहा कि 32 अजला के जिले परिषद में 13 जिले परिषद बीसी तबके को मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को बीसी तंजीम से मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी की निगरानी में इजलास मुनक्कद किया जाएगा। बीआरएस रुकन कौंसिल के कविता ने रियासत में 42% बीसी रिजर्वेशन बिल के नफाज के लिए 4, 5 और 6 अगस्त को हैदराबाद में 72 घंटों की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। कविता का दावा है कि बीसी रिजर्वेशन बिल के नफाज के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों पर दबाव डालने के लिए वो भूख हड़ताल कर रही हैं। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस पार्टी बीसी तबके को रिजर्वेशन की फराहमी में मुखलिस है तो उसे रियासत के तमाम पार्टियों का साथ मिलकर दिल्ली का दौरा करना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की जानिब से शुरू करदा धरने को सिर्फ बिहार इंतखाबात में वोटर्स को राग़िब करने का एक ड्रामा करार दिया है। उन्होंने पूछा कि रियासती हुकूमत तमिलनाडु की तरह अदालत से क्यों रुजू नहीं होती। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकने असम्बली चार मीनार, मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने मंगल की सुबह कमिश्नर बलदिया आरवी कर्नन और दूसरे ओहदेदारों के हमराह जीएचएमसी दफ्तर, सरदार महल समेत चार मीनार पुराना बस स्टैंड में मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स के ज़र इल्तिवा तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लेने का लिए दौरा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने सरदार महल, चार मीनार मल्टी लेवल पार्किंग के कामों में सुस्त रफ्तारी पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने दरख्वास्त की कि कामों में तेजी लाई जाए। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने भी कामों की सुस्त रफ्तारी पर सदर मजलिस के पयाम से कमिश्नर बलदिया को वाकिफ करवाया। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स सुहेल महमूद कादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर साहिल अकबर के अलावा मजलिस की इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व कारकुन मौजूद थे। मंगल को हुए दौरे की तफसीलात रिपोर्ट की शक्ल में सदर मजलिस को पेश की जाएंगी। नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज सुबह कमिश्नर बल्दिया का दौरा, सरदार महल का जो काम हो रहा है
वो सुस्त रफ्तार में काम हो रहा था, उसमें तेज़ी लाने के लिए सरदार महल का दौरा किया गया और उसके बाद तो चार मीनार का जो बस स्टैंड के पास जो पार्किंग आ रही है वहाँ का किया गया। तो सदर मोहतरम ने एक प्रपोजल दिया तो हाइड्रोलिक पार्किंग है, उस तरह की पार्किंग को यहाँ पर लाना चाहिए जो भी जुबली में संजीविया पार्क में हो रही सीरियन पैलेस में, उस तरह की पार्किंग। अगर वो पार्किंग जल्द से जल्द उसका काम किया जाएगा, इसकी वजह से कम 300 कार खड़े रह सकते हैं, जिसकी वजह से चार मीनार के अतराफ का जो इलाका है, जो लोग यहाँ पर आते हैं, काफ़ी उसमें सहूलत होगी। और एक पार्किंग खिलवत में पेंशन पेमेंट ऑफिस है, वहाँ पर भी हो रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। मंगल को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन में 2 मकामात पर जारी NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि अमान नगर में NP2 पाइपलाइन के अलावा CC रोड के काम भी किए जा रहे हैं और इन पर 20 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। रुकन असम्बली ने तलहा मस्जिद के पास बॉक्स ड्रेन के कामों का भी मुआयना किया। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जोनल कमिश्नर GHMC T वेंकन्ना और दीगर बलदी ओहदेदारों के हमराह एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर नई VDCC CCBT मंजूरा सड़क के कामों के अलावा स्ट्रीट लाइट्स और इसके मरम्मती कामों, ज़ेर इल्तिवा सड़क की कुशादगी और मुआवजे के चेक्स की अदायगी के बारे में बात की गई, जो इंजन बाउली से वट्टेपल्ली चश्मा रोड के मालिकान जायदाद के लिए है। इजलास में मज़कूरा मौज़ूआत के अलावा सैनिटेशन और मेंटेनेंस के काम भी शामिल हैं। इजलास में रुकन बलदिया जहानुमा मुख्तदर बाबा ने भी शिरकत की। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने RTC के जॉइंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी C रमेश से मुलाकात करके एजेंट्स के मसाइल के लिए नुमाइंदगी की। तफसीलात के मुताबिक RTA के ओहदेदार वहां मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देने वाले एजेंट्स को हिरासा कर रहे थे, जिसकी वजह से यौमिया रोटी रोजी के लिए काम करने वाले एजेंट्स का रोजगार दांव पर लग गया। मिर्जा रहमत बेग कादरी ने मज़कूरा ओहदेदार से बात करके मसाइल की यकसुई कर दी। एजेंट्स ने सदर मजलिस से इस काम के लिए इज़हार तशक्कुर किया। वाज़ेह रहे कि एजेंट्स हजरात ने इस सिलसिले में दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से रुजू होकर उन्हें मसाइल से वाकिफ करवाया था, जिस पर सदर मजलिस ने रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग को मसाइल की यकसुई के लिए RTA रवाना किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन मौजूद थे। बाद में रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्लाह से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो दरगाह नेकनामपुरा की मौकूफा आराजी पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर मिर्जा रहमत बेग ने दरगाह शरीफ के इदारों और वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्लाह से मुलाकात करके तफसीलात बताईं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड की जानिब से मुश्तरका तौर पर सर्वे कराने का मुतालबा किया, जिस पर असदुल्लाह ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो जॉइंट सर्वे करवाएंगे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असम्बली गोशा महल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गोशा महल से किंग कोठी पर्दा गेट के अतराफ अकनाफ के इलाके जात का अहाता किया। दौरे में उनके हमराह जनरल मैनेजर और DGM वाटर वर्क्स के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की और यकसुई का तयक़ुन दिया। उन्होंने तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
हाइड्रा की तरफ से चादरघाट पुल ता उस्मानिया हॉस्पिटल मुर्दाखाना तक मूसा नदी पर कायम गैर मजाज कब्जों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। हाइड्रा के मुताबिक चादरघाट ता उस्मानिया हॉस्पिटल मूसा नदी के आराजी पर गैर मजाज शेड्स, पार्किंग और दूसरे कारोबार किए जा रहे थे। तकरीबन 9.5 एकड़ की आराजी पर मुबैना जबरन कब्जे किए गए थे। यह भी बताया गया है कि गैर समाजी सरगर्मियों की शिकायत मौसूल हो रही थी। शहर के दूसरे इलाकों में भी हाइड्रा की तरफ से बड़े पैमाने पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई की जा रही है। मदरसे तालीमुल कुरान कंचनबाग बालापुर रोड में 30 जुलाई बरोदे चहारशंबा बाद नमाज फजर एक रोजा सिलसिले कादरिया कमालिया का तरबियती इस्लाही जलसा मुकर्रर है। बाद नमाज मगरिब मदरसे तालीमुल कुरान के हिफ्ज़ कुरान तकमील करने वाले खुशनसीब 8 लड़के, जिनमें हाफिज शेख खालिद सैफुल्लाह, हाफिज मोहम्मद अब्दुल रशीद, हाफिज सैयद अब्दुल समद, हाफिज मोहम्मद मुदस्सिर अली, हाफिज ख्वाजा वली, हाफिज अब्दुल मोईद, हाफिज अब्दुल सुबर और हाफिज अब्दुल रहमान महबूब नगर शामिल हैं। हजरत मौलाना शाह जमाल रहमान मिफ्ताही ने दस्तारबंदी और खिताब करेंगे। इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारान ने तलबा और उनके सरपरस्त वो ब्रदरान इस्लाम से इस मुबारक मसूद महफिल में शिरकत की अपील की है। हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में चीते की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक कल चीते को इब्राहिम बाग मिलिट्री इलाके में सड़क उबूर करते हुए देखा गया, जिसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया गया है कि यह चीता तारामती के पिछले हिस्से से मूसा नदी की तरफ गया। गोलकुंडा पुलिस ने फौरी तौर पर महकमे जंगलात को इत्तला दी। चंद दिनों से यह चीता मंचरियाल और नारसंगी इलाकों में भी देखा गया था। ग्रेहाउंड्स इलाके में जंगलाती अमले ने 4 जाल और ट्रैप कैमरे लगाए हैं, लेकिन चीता अब तक गिरफ्त में नहीं आया। ताज़ा वाक़े में चीते को इब्राहिम बाग के मिलिट्री इलाके में सड़क उबूर करते देखा गया, जिससे मुकामी अवाम में तशवीश बढ़ गई है। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज टास्क फोर्स ने अतापुर पुलिस स्टेशन हदूद के पांडुरंगा नगर में 750 ग्राम अफीयून को जब्त किया है। इस सिलसिले में राजस्थान के साकिन दिनेश को गिरफ्तार किया गया है। दिनेश के कब्जे से बाइक और सेल फोन जब्त किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हिदायत पर मुख्तलिफ औकात में नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम जारी है। मंगल को संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हदूद में आईएस सदन जंक्शन से चंपापेट जंक्शन तक मुहिम अंजाम दी गई। साउथ ईस्ट एसीबी चंद्र कुमार की निगरानी में यह मुहिम अंजाम दी गई। संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर दिन के औकात में भी मुहिम चलाई जा रही है। मदनापेट पुलिस स्टेशन हदूद के वाहिद कॉलोनी में चाकुओं से हमले के दौरान रऊफ नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया है। जख्मी को इलाज के लिए फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मी नौजवान के भाई के मुताबिक पाशा नामी शख्स ने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर उनके भाई पर हमला कर दिया। हमले की वजह रकमी लेन देन बताई जा रही है। ताहम इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस की तहकीकात जारी है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के कोतोर मंडल के पंजरला गांव में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक नौजवान ने गिरत के नाम पर अपनी हकीकी बहन का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुकामी मिस्त्री राघवेंद्र और उसकी बीवी सुनीता की बड़ी बेटी रुचिता की कुछ अरसे से अपने ही गांव के एक नौजवान से दोस्ती और मोहब्बत थी, जिससे ख़ानदान में तनाज़ा शुरू हो गया। ये तनाज़ा इस कदर बढ़ा कि अरकान ख़ानदान ने पंचायत तलब करते हुए दोनों को अलहदा रहने की हिदायत दी। लेकिन चंद दिनों बाद रुचिता ने दोबारा उस नौजवान से फ़ोन पर बातचीत शुरू कर दी। रुचिता का 20 साला छोटा भाई रोहित ने अपनी बहन को दोबारा नौजवान से बात करता देखकर बरहम हो गया और इसने बहन से झगड़ा करते हुए तार से उसका गला घोंट कर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद रोहित ने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया कि बहन बेहोश हो गई है। जब अरकान ख़ानदान घर पहुंचे और रुचिता की हालत देखी तो फौरी पुलिस को इत्तला दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जे में ले लिया और रोहित को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मनीकुंडा में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। महलूक खातून की शनाख्त आर शालिनी के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खातून अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वापस आ रही थी कि रास्ते में वाटर टैंकर की जद में आकर हलाक हो गई। इस हादसे में शालिनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुकामी लोगों का कहना है कि ट्रक और बड़ी गाड़ियों के तेज रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग के बाइस इस रूट पर अक्सर हादसात पेश आ रहे हैं। पुराने शहर हैदराबाद के ईदी बाजार जोहराबी की दरगाह के पास सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि दरगाह जोहराबी के पास एक शख्स ने पेट्रोल भरने के लिए जब अपनी एक्टिवा गाड़ी की डिग्गी खोली तो वहां सांप को मौजूद पाया। गाड़ी की डिग्गी में अचानक सांप को देखकर वो शख्स घबरा गया। मुकामी लोगों की मदद से सांप पर काबू पाया गया, लेकिन गुंजान आबादी में इस तरह सांप की मौजूदगी से लोगों में सनसनी देखी गई है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शहर को आलूदगी से पाक बनाने के लिए जरूरी इस्लाहात लाएं। आइंदा 25 साल को नजर में रखकर मंसूबाबंदी की जाए। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। नागार्जुना सागर लबरेज 18 साल बाद 14 दरवाजे खोल दिए गए। श्रीशैलम से भी पानी का इखराज।
जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मुकामी शख्स को ही टिकट दिया जाएगा। हल्के की तरक्की के लिए कांग्रेस की कामयाबी जरूरी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की मीडिया से बातचीत। रंगारेड्डी के कोतूर मंडल में दिल दहला देने वाला वाकया। भाई ने गीरत के नाम पर बहन का कत्ल कर दिया। और मणिकुंडा में दिलकराज सड़क हादसा। बेटी को स्कूल छोड़कर लौट रही खातून को वाटर टैंकर ने रौंद डाला। और नाज़रीन के साथ 4 टीवी खबरनामे का फिलहाल यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4 टीवी। खुदा हाफिज।